any programming language, which is functions, because what you develop in a using a program is a set of functions to complete your task. No, for example, if I have to write a program to make a calculator, I have to make functions for addition, subtraction, multiplication, division, logarithm, exponential, square root, cube root, and so on. So several functions clubbed up together makes a program. Okay, and what we have used like printf, scanf, these are also functions written by someone and kept in a library called stdio.h, from which you used to call those functions by writing their name and passing the arguments to those functions. Huh. So, but now we will develop our own functions so that we can use it. Let's have a look what a function is. So function is nothing but a group of statements in which you take inputs, do some operations like arithmetic operations, logical operations, and so on, or you can say simply computation. You compute using those functions. So you have to write function for each and every particular task you are going for which you are going to write a program. So while declaring a function, declaration means just telling your compiler that I have a function with return such kind of return type and a list of arguments we can have in our function, and then body of the function is called definition of the functions. Okay, so general form of a function is nothing but its return type. So what is a return type? Return type is data type. Your function is going to return some value using a particular data type like integer, float, character, sometimes pointers, and so on. So you have to give a name before the function name of data type such that it will tell the compiler that I am going to return this, and where it returns the function from where it is being called. For example, I can have my function called function1, which I will be calling from the main function. And main function is the necessary function. It should be the part of each and every C program. Okay, so your calling function, it will return a value to the calling function from where you are calling the function. So the function will be called from some other function, and from where you will call, it is called calling function, and the function you are going to call will be called function. And anyway, we are going to see through examples, so don't worry. Here I just want to tell you, before using a function we need to declare a function. Okay, in C programming, so declaration should having a return type followed by the name of the function, then in the pair of parentheses a list of argument you can provide. List of argument again should have the return type and the name of the variable. Okay, for example, I want my functions to have only one parameter, integer, so I will write int followed by the name of the variable. So name can be sometimes missed also, there will be no problem, but you should be naming the parameters using some return type. And then the statements you can have for your functions. Statements means operations which you want to perform using your function. One of the example we are going to see here. So we see here, C compilers, no, C compiler first find the main, this keyword main is a function. Okay, so it starts compilation from the main function onwards. So it will come to the main, it will see some certain variables, and it will see there is a function called here called max a comma b. So now it will go to your other part of the program and look for the where max function is being written. So it will find a definition of the max function somewhere, not always above, it can be down also. So here there is no declaration, it is definition. Definition means you have defined your function. Definition means what do you want to do using your function, every statement should be written there, that is called definition. Declaration means you just want to tell your compiler that I have a function with such name. अगर यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा होता तो सिर्फ यहाँ पे मैं लिखता इंट मैक्स और इसके पैरामीटर्स और यहाँ सेमीकोलन लगा देता, ठीक है, और फंक्शन की डेफिनेशन कहीं और में लिख सकता था, बट यहाँ पे डिक्लेरेशन कम डेफिनेशन एक साथ है. ओके,
लाइक आपने वेरिएबल में देखा यहाँ पे इंट a इक्वल टू 10 है, बट सिर्फ इंट a लिख के सेमीकोलन लगा देते, आगे a इक्वल टू 10 लिखते। तो इंट a सेमीकोलन अगर लगा देते तो वो कहलाता कि डिक्लेयर आपने किया एक वेरिएबल नेम्ड एज a, और a इक्वल टू 10 लिख दिया, इसका मतलब डिक्लेरेशन कम डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन इन द केस ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो फंक्शन के केस में उसी को बोलते हैं डेफिनेशन कम डिक्लेरेशन, जब आप बॉडी ऑफ द फंक्शन ऑल्सो लिख देते हो एक ही साथ में बिना डिक्लेयर किए हुए। ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ। ये फंक्शन एक प्रोग्राम है जो दो दिए हुए नंबर में से बड़े नंबर को ढूंढना है हमें, ठीक है। तो हमने सिर्फ मेन के अंदर लॉजिक नहीं लिखा, हमने कहा कि चलो एक फंक्शन लिखते हैं इसके लिए, और फंक्शन का काम होगा कि वो बड़ा नंबर ढूंढ के हमें दे। तो यहाँ आप देख सकते हो ये डिक्लेरेशन इस तरह से है कि इंट m नाम का एक वेरिएबल भी डिक्लेयर किया गया है, जिसको कि इनिशियलाइज किया गया है मैक्स a, b, यानी कि मैक्स जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो स्टोर होगा m में। तो देखो आप इंट, ये m वेरिएबल इंटीजर डिक्लेरेशन है, तो m में कौन सी वैल्यू आएगी, इंट आएगी। तो ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो भी क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए, इसीलिए ये फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है यहाँ पे। ओके, so we named return type as int because we want m to have a value of type integer. So the m is also declared as int, and it expects something from the right hand of this assignment operator as integer. So it has a return last statement of the function. You can see it is a return y. So what is y? So you can see here int x, int y. So two variables are the parameters of your function, and both are integers, and one of these integers is being returned by your function max. So it will return the value of y, which will be copied here. So max a comma will be replaced by the value of y, and that value will be copied to your variable m. No, so you are calling function max from the main function. So main function will be called as calling function, and which function is going to be called is max. So max will be called called functions, and these are the parameters of your function. So here we have two parameters, both of type integer. So either you can have the name x comma y here, or you could have just while declaring we can use only int comma int, and while defining the function then we should have named these two functions. Okay, अब फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि आपने आर्गुमेंट यहाँ या इसको आर्गुमेंट या पैरामीटर बहुत चीज बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स थे टाइप इंटीजर, तो जब फंक्शन कॉल करोगे तो दो वैल्यू देकर ही कॉल करोगे आप, वो वैल्यू भी इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो a comma b, the value of a is 10, value of b is 20. So whenever you write max a comma b means the value of a, which is 10 or 20, will be copied to the variable x and y. So x will have the value of a, y will have the value of b. So x is equal to 10, y is equal to 20. Now we are checking which one is greater. Now logic is for to what kind of work you are going to complete with your functions. So here the logic should be developed in such way you can find maximum of the two given numbers. So if x greater than y, then you are simply returning x, means you found the greater number, so you are returning x. अगर ऐसा true होता है, जो कि नहीं है इस केस में, otherwise else में लिखा है return y. तो y, since y's value is equal to b's value which is 20, so 20 will get returned by the function max. So 20 will be replaced by this max a comma b, and that 20 will be copied to the variable m. Now when you will print the value of m is %d comma m, so your output should be 20. Okay, so this is simple. This is your function definition. This is the place where you call the function, and the value gets returned by this function will be copied to your variable m. So either if you want to see what return value is for the function max, we can directly write here max a comma b. No need to use a integer variable m. Okay, so directly we can have max a comma b, which will be replaced by 20, and the 20 will be the output here in that case. But anyway, we can copy the value of return also using some variable. You can copy it in some variable sometimes, and we used to use it. So any doubt understanding what a calling function, what is a called function, there are several terms we have used: parameters or arguments, then function return type, name of the function, function declaration, function definition.
So these are the things you have heard first time. One more thing you can observe, for main also we have a return type int. That's why we are returning something. Return 0 means you are returning to the parent function. So main is, since main is also part of, no, your operating system is the manager of all the things which is happening on your system. So main is returning to the operating system saying that I have completed my execution, now you can revoke my resources back. That's why there is a return 0. Okay, so you can return any value, there is no problem. It should be an integer because you have make return type as integer, so you can have, you might be returning 10 also, there is no problem. It just signals the operating system that I have completed my execution and my resources should be used by other processes. Okay, anyway, so here you can see you have in main we have used a term, it is a keyword void. So if you don't want your function to have any parameters, so you should write void, you should not keep it blank. Okay, you can write it void. Void means null. We don't expect any parameters for the function main, so we should always be writing void for any function which is not having any parameters with it. So any question? No questions means you all are getting the point, which is very good. Okay, let me just move on. So the 3 questions you should be answering before moving to other topics of functions. So uh, so first, no, why do we need functions? So there are several beautiful things with functions, but at least these 3 things is going to be the why we use functions in our program. So functions help us in reducing code redundancy. So what is the meaning of code redundancy? For example, throughout semesters you might be writing so many programs, okay, but there may be a chances. For example, today I wrote a program for sorting numbers, okay, just for sorting numbers. So after a month you have been given a task to develop a program so that you can sort the list of given students who have been admitted during this current academic year. So this sorting of numbers you can reuse for that program also. So that's why it is called reducing the code redundancy. You don't need to write code again and again for the same purpose. You can reuse your code. Because I know sorting, I have written sorting functions somewhere and I can reuse it. For the same example, if you have developed a program called something to calculate logarithm of base 10, so while developing a calculator program you can use directly this program on that function of logarithm in your calculator program. So you don't need to write the same function again and again, you can reuse it. So you will reduce the complexity next time when we have the same task to do. Okay, so functions make code modular. So if you don't use functions, it will be very difficult to debug your program. So modulation means small packages you have now. For example, you can see, if you see the code of printf, it is a I think 300 or 400 lines of code. So to use the printf, I have to write 300 lines of codes every time I use printf. But someone has written code for printf and it is being saved in some library, and it is modular actually. No, that library is being called in your program and you just say printf double quotation inside a pair of parentheses and your work has been done. You don't bother about that 300 lines. Okay, so you make your program modular when you use functions, and this is also called abstractions. We directly use printf, putchar, getchar, scanf, and all kinds of already defined functions. For example, yesterday in the lab class I was discussing about making a square root. So a square root you have to develop your own logic, but math.h is a library in which a square root function is already written. So you can just call the function. You don't know what is the implementation of that square root function, but you are able to use it. So it is written somewhere, but it is hidden to all of us. So it is
this concept is called abstractions. Means you don't know the details, but you know the actual working of it. That's all. You can use it, you can utilize it. Sir, you have checked our midterm 1 copies. No, I didn't get time to check it actually. Okay, any questions understanding the functions? Let me know. Otherwise we will move on. And so certain things you need to remember. मॉड्यूलर का मतलब ये होता है कि जैसा कि प्रोग्राम क्या है कि हमेशा आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप सम करने के लिए प्रोग्राम लिख लें मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। जब आप लार्जर प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो हर टीम बनी हुई रहती है और वो टीम अलग अलग काम करती है। जैसे अभी एक एग्जांपल हम कह रहे थे कि सारे स्टूडेंट्स का एक डेटाबेस बनाए जहां उनके सारे डिटेल्स फीड हों और वो एक डिक्शनरी ऑर्डर में मेंटेन रहे। तो सिर्फ वो क्या एक प्रोजेक्ट हो गया, उसके लिए आपको कम से कम 8-10 फंक्शन की जरूरत पड़ेगी और वो अलग अलग जो स्टूडेंट्स होंगे अलग अलग चीज़ों पे काम कर सकते हैं एक साथ। सो दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सो अभी शायद ये समझ में ना आए मॉड्यूलेशन क्या होती है, बट जब आप डेवलपर मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट करोगे तो फिर आप समझोगे कि मॉड्यूलर प्रोग्राम का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, anyway, so let's discuss in detail what function declaration is. तो जो मैंने कहा कि फंक्शन जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं दैट इज, तो आप फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखते हो। डिक्लेरेशन के वक्त जब सेमी कॉलन लगा देते हैं पैर ऑफ पैरेंथेसिस को, दैट इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। सो फंक्शंस प्रोटोटाइप्स, you can see there are several return type, the name of the function, then parameters or arguments, then there is no semicolon when you are defining a function, but when you are declaring a function we should have a semicolon here, then your body of the function. तो फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन जो आप करते हो दैट इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। मतलब फंक्शन के बारे में आप बता रहे हो अपने कंपाइलर को कि मैं XYZ नाम का जो यहाँ पे हेडिंग है वो मेरे फंक्शन का नाम है, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, वो आर्गुमेंट वॉइड लिख दिया, इसका मतलब कोई आर्गुमेंट वो फंक्शन नहीं ले रहा है, और अदरवाइज यहाँ पे इंट फ्लोट कैर वगैरह वगैरह आपको लिखने पड़ते हैं। तो आप ये बता रहे हो तो अपने कंपाइलर को मुझे इस टाइप के आर्गुमेंट्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मतलब जो भी मुझे कॉल करे ना वो इस तरह के आर्गुमेंट के साथ मुझे कॉल करे, अदरवाइज मैं जवाब नहीं दूंगा उसको, मतलब रिटर्न नहीं करूंगा कुछ, और कंपाइलर विल क्रिएट एन एरर फॉर दैट। एक्सक्यूज मी, हेलो जी सर। हाँ अच्छा अच्छा जी, ठीक है सर, मैसेज कर देते। ओके सर। Yeah, so that is called function prototype. Now for function definition, what are the statements you put together to do a particular task will be called as body of the functions. Okay, and then finally the return. So ships, whatever return type you have written in function prototype, you should be returning those kind of values only. So this is simple function declaration in function prototype. Now let's have some examples of function prototypes. Okay, so we let's just have a look. Int max int comma int, it is a function prototype. Name of the function is max, return type is int, and it expects 2 arguments of type integers. So you have written int comma int, and while defining the functions you should have writing the name of the variable also, followed by the int x and int y and so on, like that. So it is a function that takes 2 integers as parameters and returns an integer. Okay, now let's have a look at int star swap, int star and int. So it's also a name of function. Return type is a pointer to an integer, and it takes 2 arguments. One is pointer of integer type and another is simply an integer. चूंकि पॉइंटर अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम आज देखेंगे पॉइंटर का बेसिक्स, एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज होता है बेसिकली, एंड विल सी, and it is one of the most important concept of C programming also. Okay, so a function that takes an int pointer
So int pointer means its one argument is int pointer and int variable as parameters, and returns a pointer of type int. It will return address of an integer variable. Okay, it says that the prototype of function says that I am this and this, and I will be returning a pointer of type integer. Now look, let's have a look at char star call char b. So it takes as an argument of character type, okay, and it returns a pointer to a character variable, sorry, character type of character. So a function that takes a char as parameter and returns a reference variable. Okay, तो ये एक कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल होगा सिर्फ उसका एड्रेस रिटर्न कर सकता है, इंटीजर का नहीं. ओके, now have a look at int fun char comma int. So it takes parameters. One parameter is of character type, one parameter is of integer type, and then returns a value as integer. So we can have a mix of parameters of several data types, and there is no limitations as of now. With 64 bits we can have as many return variables. Okay, sorry, parameters. There is no limitation actually. Parameter passing to functions. The parameter passed to functions are called actual parameters, and the parameter received by the functions are called former parameters. Okay, we'll have the function, look at the function again, and I will ask you which one is actual parameter and which one is formal. So एक line आप पढ़ो इसको फिर समझो एक बार. The parameters passed to functions means whenever you were calling the functions, what parameters you have given the to the function, that is called actual parameters. Okay, and the functions means where the definition of the function was written, and in argument you have declared two variables in the previous example, and those parameters are called formal parameters. Okay, and there are two popular ways to pass the parameters to a function. First one is called pass by value, second is called pass by reference. So pass by value, whatever example we have seen now was passed by value. We were sending the value of the variable, and by pass by reference we will be sending the address of those variables but not the actual value. Okay, so let's go and see the program again, this one, and here you see we are passing. So you call the function funx using this program. We called the function definition is written here. It is not returning anything because you have written keyword void. Void means null, nothing. So this function doesn't return anything. What it does is it is just an assignment statement written inside the function. So you call this function using funx. So this x value 20 will be copied to this x, which is the different from this x. Okay, because the scope, I think scope we have not discussed for a variable because we have not discussed the function. So scoping we will be discussing what is the scope of a variable. But अभी के लिए आप इतना समझें कि किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आपने, तो सेम नाम का वेरिएबल हम किसी दूसरे फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हैं और देयर विल बी नो एरर. लेकिन हाँ, यहाँ इस ब्लॉक के अंदर हम फ्लोट एक्स डिक्लेयर नहीं कर सकते, तब एरर आ जाएगी. ठीक है, नेम का वो हो जाएगा. बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दूसरा फंक्शन है. तो इस x का जो स्कोप था ना, सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर था. मतलब इस फंक्शन के बाहर इस x को कोई नहीं जानता था. अगर यहाँ पे मैं मेन के बाहर x यूज कर रहा हूँ तो उसको डिक्लेयर करना जरूरी था. तो चूंकि मैं x यहाँ यूज कर रहा हूँ तो मुझे इस x को डिक्लेयर करना था. तो देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपने फन x कॉल किया, ये x कॉपीड, ये x रिप्लेस हो गया इस वैल्यू 20 से, वैल्यू से हुआ. ठीक है, और ये वैल्यू कॉपी हो गई इस x में, और फिर इस x की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया 30. तो इस x का जो एड्रेस है, मान लो वॉइड वाले का, मान लो 100th लोकेशन पर है और इसका 50th लोकेशन पे, तो वो चेंज नहीं हुआ. इस x की वैल्यू यानी 50th लोकेशन पे 20 ही रहेगा, और x जो कि 100th लोकेशन पे था, ये वाला x, उसकी वैल्यू 30 चेंज करी, तो इन दोनों पे अलग अलग वैल्यू अपने पास रहेगी, 30 और 20. सिमिलैरिटी नहीं होगी. सिमिलैरिटी होने के लिए हमें यहाँ पे सर्टेन चेंजेस करने होते हैं. हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको, ये देखो 3-4 चीजें समझो. यहाँ पे ये x जो आपने कॉल किया है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर. ये x जो यहाँ लिखा हुआ है इसको कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, और ये जो x आपने कॉल किया ये कॉल बाय वैल्यू है. मतलब आपने
फंक्शन कॉल वैल्यू के साथ किया है ना कि एड्रेस के साथ, और एड्रेस के साथ करेंगे तो उसको कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो लेट्स मेक सर्टेन चेंजेस टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। तो ठीक है, तो जब आप लिखते हो ना, यहाँ पे दो चीजें मैं लिखूंगा, int a, let's make it bigger, it got stuck. So let's make it 10 and then we write int star ptr, ptr is for pointer, और इसको इनिशियलाइज कर दिया हमने एड्रेस ऑफ ए से। अब एड्रेस ऑपरेटर तो मैंने आपको कई बार बताया है, अब सिंपली आप यहाँ समझो, ये एक अपन क्या करते हैं, सॉरी सेव नहीं करना है अपने को, ये एक बॉक्स बना देता हूँ मैं, ठीक, और इस लोकेशन को मैं चलो 100th लोकेशन बोलता हूँ। 100 चूंकि समझने में आसानी होती है इसलिए मैं हमेशा चूज करता हूँ 100 लिखना। ओके, अब मैं पेन लेके फ्री हैंड से लिखूंगा, थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होगा बट जस्ट बियर विथ मी। और ये इस वेरिएबल को नाम हमने दिया है ए, बट मेमोरी में क्या ये 100th लोकेशन पर है, ठीक है, 100th लोकेशन पे, लोकेशन। अब ये पॉइंटर जो आपने डिक्लेयर किया है पीटीआर, और उसमें एड्रेस ऑफ ए दिया है, ठीक है, तो ये पीटीआर पॉइंट करता रहता है इस एड्रेस को। पीटीआर भी चूंकि एक वेरिएबल है पॉइंटर का, तो इसका भी कोई लोकेशन, लेट्स से 200th लोकेशन पर ये है मेमोरी में, और इसका नाम तो पीटीआर है ही, अपन ने रख ही दिया है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू क्या आपने रखी है 10, तो क्योंकि a इक्वल टू 10 आपने लिखा है तो ये वैल्यू यहाँ पे 10 स्टोर है। पीटीआर पॉइंट कर रहा है, और पीटीआर जो वेरिएबल है उस पे क्या रखा हुआ 100 जो कि एक एड्रेस है, ठीक है, 100 रखा हुआ है। तो सिंपली पीटीआर कीप्स द वैल्यू 100, तो पीटीआर की मदद से मैं इस 10 को भी यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंटफ के अंदर लिखूं तो मुझे लिखना पड़ेगा printf %d, ये थोड़ा ज्यादा ही खराब हो रहा है हैंडराइटिंग माउस से, और यहाँ पे मैं अगर स्टार पीटीआर लिख दूं ना, इसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, जो स्टार लगा दिया मैंने पीटीआर के आगे। तो इट इज सिमिलर, इट विल वर्क सिमिलरली एज, अगर यहाँ पे मैं ए लिखता तो जो इफेक्ट आता, ए लिखता तो क्या होता, ए की वैल्यू प्रिंट होती, स्टार पीटीआर लिखा तो भी वैल्यू प्रिंट होगी। तो और अगर मैं %d लिख के सिर्फ पीटीआर लिखता यहाँ पे, और ये आपको नहीं देता स्टार, तब जो वैल्यू प्रिंट होती ना, तब आपको मिलता 100 लिखा हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे एक एक्चुअली कंपाइलर का वार्निंग भी आता कि %d की मदद से हम एड्रेस को नहीं प्रिंट करते हैं, उसके लिए %u यूज करना पड़ता है, स्मॉल या कैपिटल। लेकिन चूंकि %d से लिखा तब भी आपको वो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा जो ए वेरिएबल का एड्रेस है, ना कि वैल्यू। अगर वैल्यू लेनी है तो मुझे यहाँ पे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड स्टार। तो ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने स्लाइटली अभी आपको बताया। अब देखो इस फंक्शन में स्लाइटली चेंज करूंगा मैं कि कॉल बाय रेफरेंस कैसे काम करता है उसके लिए, ठीक है। तो देखो उसके लिए मुझे सबसे पहले फंक्शंस के आर्गुमेंट्स को बदलने होंगे, तो पॉइंटर टाइप का आर्गुमेंट करूंगा फंक्शन का, और जो फंक्शन कॉल करूंगा यहाँ पे वो एड्रेस ऑफ एक्स की मदद से कॉल करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे। अब ये क्या हुआ, एड्रेस ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू नहीं, कॉल बाय वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, कॉल बाय रेफरेंस कर रहा हूँ, या कॉल बाय एड्रेस समझ लो अगर सिंप्लिसिटी के लिए, बट दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। मतलब इस वैल्यू वेरिएबल का मैं एड्रेस जो है पास कर रहा हूँ फंक्शन में। तो एक्चुअल पैरामीटर क्या हुआ, एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल, और फॉर्मल पैरामीटर्स, ये जो वेरिएबल एक्स है अब क्या है, ये पॉइंटर के रूप में इस एक्स को मैंने डिक्लेयर किया है। तो इस एक्स में कैपेबिलिटी है कि ये होल्ड कर सके किसी एड्रेस को जिसका टाइप इंटीजर हो। तो एक्स एक इंटीजर वेरिएबल है, इसका एड्रेस यहाँ पे चला है। और अब चूंकि इस आप सॉरी यहाँ पे आपको उसके लिए स्टार एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तक पहुंचने के लिए डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगानी पड़ेगी हमें।
तो क्या होगा, मान लो इस x का लोकेशन 100 था और इस x का लोकेशन 200 था, लेकिन ये x भी अब वैल्यू 20 रख रहा है, और अभी तक जब यहाँ तक आया था तो इस x के पास एड्रेस था 100, लेकिन जब आपने पॉइंटर लगा के इक्वल टू 30 कर दिया तो ये 100 लोकेशन पे जाके वैल्यू को चेंज करके आ गया, यानी इस 20 के बदले अब वहां पे हो गया 30, और जब आप प्रिंट करोगे x की वैल्यू देन यू विल गेट द वैल्यू 30 रादर देन 20। तो चूंकि आपने रेफरेंस पास किया और रेफरेंस में डी रेफरेंस करके वहां वैल्यू चेंज कर दी, तो वो वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगा फॉर्मल पैरामीटर्स पे। सॉरी, यूजिंग फॉर्मल पैरामीटर्स यू चेंज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स, बट अर्लियर इट वाज नॉट द केस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है चीज, मैं समझ पा रहा हूँ, बट आप अगर समझो तो समझ पाओगे, अदरवाइज थोड़ा डिटेल में पॉइंटर डिस्कस करेंगे कभी और। एनीवे, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई समझने में तो बताए अभी। I will try to make it some more clarity। या चलो पॉइंटर अगर नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए आप बस समझो व्हाट इज एक्चुअल, व्हाट इज फॉर्मल पैरामीटर्स एंड कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस को अभी होल्ड पे भी रख सकते हो, बट जिनको समझ में आएगा वेल एंड गुड, जिनको नहीं भी समझ में आया चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो पॉइंटर डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अभी मैंने एरे भी नहीं पढ़ाया है। एरे पढ़ाऊंगा उसके बाद पॉइंटर पढ़ाऊंगा, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है। एरे को समझे बिना फिर पॉइंटर, वहां पे हम मिक्स करके दोनों चीजों को पढ़ेंगे। फिर फंक्शंस में हम एरे का एड्रेस भी पास कर सकते हैं, वो सब चीजें देखेंगे। नाउ कमिंग टू द स्कोपिंग ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल। जैसा कि मैंने कहा कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन में आप सेम नाम के वेरिएबल अलग अलग फंक्शन में हम डिक्लेयर कर सकते हैं, वहां पे स्कोप का मतलब वो क्लैश नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सेम ब्लॉक में अगर वेरिएबल var1 डिक्लेयर कर दिया वो इंटीजर टाइप का, तो फ्लोट कैर टाइप का var1 आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज देयर विल बी ए नेमिंग क्लास, योर कंपाइलर विल जनरेट एन एरर फॉर इट। ओके, so that's why we have to learn what is the scope। so scope का मतलब होता है the region, मतलब the body in which a variable is valid। मतलब उसके बाहर, चूंकि डिक्लेरेशन आपने लोकली किया है, तो बाहर के लोग नहीं जाने उसके बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको आसानी से कैसे समझें, तो एक पेट एनिमल है आपके पास, लेट्स से डॉग। आप सेम ब्रीड का डॉग आप सब कुछ 10 लोगों ने अपने घर में रखा हुआ, एक का नाम टॉमी, दूसरे का नाम XYZ कुछ है, तीसरे का नाम वो है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आपके टॉमी को देख के बुलाऊं XYZ, तो टॉमी नहीं पूंछ हिला के मेरे पास आएगा, ठीक है। तो वही बात हुआ कि वो आपके प्रेमाइसिस के अंदर ही और द डॉग विल बी नेम्ड एज टॉमी विद द सेम डॉग। तो उसी तरह सेम इंटीजर हुआ, लेकिन चूंकि अलग अलग घर में वो है, तो वो सिर्फ अपने नाम के द्वारा जाना जाएगा, और दोनों का नाम सेम भी रख देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप टॉमी बुलाओगे तो पड़ोस में जो टॉमी कुत्ता है वो आपके पास आ जाएगा, वो नहीं आ रहा है आपके पास, क्योंकि वो जानता है कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ। ओके, सो नाम से कोई मतलब नहीं है उसको, सेम नाम आप रख सकते हो। हाँ, एक ही घर में फिर दो नाम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि खुद दो भाइयों का नाम एक नहीं हो सकता है, अदरवाइज देयर विल बी नेमिंग क्लास। सो स्कोप को सिंपली यही इसी तरह भी समझते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि a function cannot have the name of two variables similar, okay, either be a same type or different types। many cases correspondence to block with variables declaration। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक्स एक प्रोग्राम में हो सकते हैं जो अपना डिक्लेरेशन फंक्शंस का रख सकता है। फॉर एग्जांपल में फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 सब अपना अपना कोई एक मतलब वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा कोई जो नहीं कि सारा वेरिएबल जो डिक्लेयर हो मेन फंक्शन के अंदर ही हो, या फिर ग्लोबल वेरिएबल ही सारा हो। ग्लोबल भी अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया एक्चुअल में, तो ये स्कोपिंग में ही पढ़ेंगे। सो वेरिएबल्स डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ ए फंक्शन हैव ग्लोबल स्कोप। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, उस फंक्शन को फिर सारे फंक्शन वाले जानेंगे। तो वो गली का कुत्ता समझ लो, जो किसी के पास भी दुम हिलाते हुए जाता है, तो उसके बारे में सब लोग जानते हैं। हाँ, ये चौराहे पे कुत्ता रहता है जो कि कोई भी साइकिल वाला पास करता है तो उसके पीछे दौड़ने लगता है काटने के लिए। तो ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप हो कि सब लोग जान रहे हैं, पूरे मोहल्ले के लोग। उसको मोहल्ला यहाँ प्रोग्राम से आप वो कर दो,
ठीक है। फंक्शन डेफिनेशंस आल्सो हैव स्कोप, उसी तरह फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है उसका भी स्कोप होता है। मतलब जो फॉर एग्जांपल मैथ डॉट एच में जो फंक्शन लिखा हुआ रहेगा और मैं सिर्फ अपने प्रोग्राम में कॉल करूं stdio.h और फिर मैथ डॉट एच स्क्वायर रूट फंक्शन को चाहूं कि यूज कर लूं, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज स्क्वायर रूट फंक्शन मैथ डॉट एच वाले घर में है और उसको मैं कोशिश करूंगा stdio.h सिर्फ ऊपर में इंक्लूड करके कॉल कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसका स्कोप भी लिमिटेड है, जब तक कि मैं पर्टिकुलर लाइब्रेरी को यूज ना करूं, मैं फंक्शंस को यूज नहीं कर सकता। ओके, सो ये एग्जांपल देखते हैं फिर समझते हैं। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ इच वेरिएबल, क्वेश्चन ये है आपका। तो देखो यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको इंट एन मैक्स, ठीक है, जिसको हमने 20 से इनिशियलाइज किया। क्या ये किसी फंक्शन का पार्ट है? नहीं, ये मेन के भी बाहर है, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो अब चाहे आपके पास इस पूरे प्रोग्राम में 10 फंक्शन हो, मेन के अलावा मेन मतलब फंक्शन 1 से लेके फंक्शन 10 तक, तो किसी भी फंक्शन के अंदर अपन एन मैक्स रख सकते हैं। ओके, और कोई नेम का वो नहीं आएगा, क्लास आप यूज करोगे और जब आप कोई चेंज करोगे एन मैक्स में, चाहे किसी भी फंक्शन में हो, तो वो चेंज एन मैक्स के एड्रेस पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और अगर आप अपनी कॉपी बनाना चाहते हो एन मैक्स की, देन यू हैव टू डिक्लेयर ए वेरिएबल कॉल्ड एन मैक्स अगेन। अदरवाइज ये ग्लोबल वेरिएबल है जिसके बारे में सबको पता है कि हाँ एन मैक्स नाम का एक फंक्शन सॉरी वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और मैं यूज कर सकता हूँ, तो एवरी फंक्शन कैन यूज इट। सो दिस इज कॉल्ड ए ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है? जो किसी फंक्शन ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हियर इंट मेन, और मेन के आर्गुमेंट्स देखो यहाँ पे argc और कैर मतलब पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर का एक एरे है जो कि इसका 2 आर्गुमेंट्स, बट फॉरगेट अबाउट इट, ये मान के चलो अभी ये कुछ नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ फंक्शन से इंट ए जो वेरिएबल है ए बी और सी और एन है। ठीक है, मतलब 4 वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए मेन के, तो ये लोकल टू मेन है, इसको मेन के बाहर आप यूज नहीं कर पाओगे, अदरवाइज कहेगा कि डिक्लेयर नहीं है वेरिएबल्स। ओके, तो प्रिंटफ जो आपने किया यहाँ पे 1, ए, तो 1 और ए की वैल्यू जो 0 है वो प्रिंट हो जाएगी सिंपली, उसी तरह 2 और पी की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम n इक्वल टू 3, यहाँ n अभी डिक्लेयर नहीं था, इनिशियलाइज आपने कर दिया, सॉरी डिक्लेयर था इनिशियलाइज नहीं था, तो इनिशियलाइज 3 से किया, और n लेस और इक्वल देन n मैक्स, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक रन करेगा? 3 से लेके 20 तक। अब जो भी काम हो रहा है फंक्शन के अंदर c इक्वल टू ए प्लस बी और फिर a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ये सारी चीजें हो रही, तो n मैक्स को यूज हम कर रहे हैं मेन के अंदर, जबकि हम डिक्लेयर नहीं किया है हमने, तो इसलिए यूज कर पा रहे हो आप n मैक्स को, क्योंकि n मैक्स एक ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल, मतलब इसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में वैलिड है, एक्सपेक्ट फ्रॉम वेदर इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन और नॉट। ओके, तो लोकल वेरिएबल्स क्या क्या थे? ए बी सी और n, जबकि ग्लोबल क्या था? n मैक्स। तो ये स्कोप है इसका, इसका स्कोप ग्लोबल है और इसका स्कोप लोकल टू द फंक्शन मेन। उसके बाद नेक्स्ट डिक्लेरेशन, फिर से एन मैक्स इक्वल टू 20 है, यहाँ पे आपका मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, इस फिर से आपने 4, और देखो यहाँ पे एन मैक्स इक्वल टू 25, यानी कि ये वैल्यू हमने चेंज कर दी इस बार, जो 20 था उसको फिर से हमने एन मैक्स इक्वल टू 25। तो चेंज रिफ्लेक्ट होगा क्या यहाँ पे? नहीं होगा, क्योंकि ये एन मैक्स लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मेन में, तो जब भी मैं इस फंक्शन में एन मैक्स लिखूंगा ना, तो वो एन मैक्स ग्लोबल के पास नहीं जाएगा, वो पहले सर्च करता है कि अपने, जब मैं कोई वेरिएबल यूज कर रहा हूँ ना अपने कोड में, तो वो सबसे पहले जिस भी ब्लॉक के अंदर है वहां देखता है कंपाइलर मेरा कि इसके अंदर तो नहीं है डिक्लेयर क्या हुआ, अगर नहीं है तब उसका स्कोप वो जाके ढूंढता है ग्लोबली है या नहीं है। तो यहाँ पे एन मैक्स अगर आप लिख रहे हो, इसका मतलब आप 25 के बारे में बात कर रहे हो, ना कि, तो अगर मैं टॉमी बुला रहा हूँ ना, तो सबसे पहले घर में अगर टॉमी होगा तो वो आएगा, ऐसा नहीं है कि पड़ोस से टॉमी दौड़ के मेरे पास आएगा। तो मैं सबसे पहले टॉमी को अपने घर में ढूंढता हूँ, यानी मैं नहीं, मेरा कंपाइलर टॉमी को अपने घर में ढूंढ रहा है, ना कि मोहल्ले में। समझो मेरी बात। तो ये चूंकि दोनों नाम सेम है, लेकिन nmax जब लिख रहा हूं तो वो कॉपी होके 25 की वैल्यू को लाएगा, और ये दोनों nmax दो अलग वेरिएबल है जिनका स्कोप अलग अलग है। वन इज लोकल टू मेन, अनदर इज ग्लोबल टू प्रोग्राम। ओके, so this is the same variable name. क्लास को आप भेज देना, लेकिन है ना? Okay,
नाउ हैव अ लुक ऑन सम डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स। अभी तक हमने वेरिएबल्स के टाइप को पीछे नहीं पढ़ा था, हमने मतलब टाइप पढ़ा, इंट, फ्लोट, ये सब, कैर, ये सब पढ़ा था, लेकिन वेरिएबल के क्लास होते हैं, इसको बोलते हैं स्टोरेज क्लासेस। तो ऑटोमेटिक, स्टैटिक और रजिस्टर, ये तीन टाइप के स्टोरेज क्लासेस होते हैं वेरिएबल्स के, तो उसको हम देखते हैं अभी, ठीक है। पीछे अगर कोई डाउट हो तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं 2 मिनट का पॉज लूंगा यहाँ पे, ठीक है। You can write questions here also, no problem. But let me know that you are listening. जगे हुए हो सब लोग, क्योंकि बच्चे यहाँ क्लास में सो जाया करते थे जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग सोए रहो कम से कम ऑनलाइन मोड में। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आई विल टेक ए 2 मिनट पॉज। Okay, I'm back. Let's have a look at the static. Okay. या सो अभी तक वेरिएबल्स का क्लास हमने डिक्लेयर नहीं किया था, स्टोरेज क्लासेस क्या क्या थी, सिर्फ आपने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखे, टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हमने डिफरेंट देखे थे, बट नाउ वी विल गोइंग टू सी व्हाट इज द डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस अवेलेबल in C programming with respect to the different variables. Okay, so just have a look on the statements. A static keyword has two meanings depending on where the static variable is declared. ठीक है, स्टैटिक स्टैटिक कीवर्ड मतलब आपने कहाँ पे डिक्लेयर किया है, इस पे काफी डिपेंड करता है, हम देखेंगे एग्जांपल्स भी, बट एक बार आपको पढ़ना चाहिए। आउटसाइड ए फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल और फंक्शंस ओनली विजिबल विद इन दैट फाइल, नॉट ग्लोबली, मतलब एक्सटर्न के रूप में हम स्टैटिक यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, एक्सटर्न भी एक स्टोरेज क्लास है एक्चुअली। इनसाइड ए फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल, जब आप किसी फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो तो क्या मीनिंग होता है उसका, तो पहला लाइन समझो कि आउटसाइड ए फंक्शन, जब आप स्टैटिक को डिक्लेयर करते हो, डिक्लेयर फंक्शन वो भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ओनली विजिबल विद इन दैट फाइल, नॉट ग्लोबली, मतलब जिस फाइल में लिखा हुआ है सिर्फ उस फाइल, यानी कि इंक्लूड स्टीडियो और डॉट एच में लिखा है तो सिर्फ उस फाइल से रिलेटेड फंक्शंस यूज कर सकते हैं स्टैटिक डिक्लेयर्ड वेरिएबल और फंक्शंस को, ना कि मैथ डॉट एच वाले। उसी तरह किसी फंक्शन के अंदर अगर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, फॉर एग्जांपल आपको लिखना पड़ेगा स्टैटिक इंट ए, तो इस तरह मेन के अंदर हमने लिखा तो उस फंक्शन के लोकल ही काम करेगा, ठीक है। आर इनिशियलाइज ओनली ड्यूरिंग द प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन, मतलब जब आप प्रोग्राम का डेफिनेशन लिखोगे तभी आप इनिशियलाइज कर सकते हो। डू नॉट गेट री इनिशियलाइज विथ ईच फंक्शन कॉल, मतलब फंक्शन को अगर एक से ज्यादा बार कॉल करें हम कंटिन्यूएशन में, तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो फिर से सेम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर दे, वो उसको स्किप कर देता है उस स्टेटमेंट को जहां पे इनिशियलाइजेशन पार्ट रहता है। तो ये खूबसूरती है स्टैटिक वेरिएबल की, मतलब विथ रिपीटेटिव कॉल ऑफ द फंक्शन यू डोंट इनिशियलाइज द स्टैटिक वेरिएबल अगेन एंड अगेन। और इसका इंपॉर्टेंस आप देखोगे अगर कोई प्रोग्राम आप लिखोगे जहां पे आप स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टैटिक इंट एक वेरिएबल लिखा हुआ है इक्वल टू 0 आपने इनिशियलाइज कर दिया है, किसी कहीं भी आप कर सकते हो, तो इस तरह के डिक्लेरेशन होते हैं स्टैटिक के। तो कीवर्ड स्टैटिक फॉलोड बाय द डेटा टाइप एंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल, और चाहो तो वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो या फिर सिर्फ डिक्लेयर करके बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं अपन। रजिस्टर वेरिएबल एक दूसरा स्टोरेज क्लास है अपना, रजिस्टर वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के डेटा टाइप के आगे आप रजिस्टर कीवर्ड यूज करते हो और उस तरह से आप रजिस्टर, ये फास्टेस्ट एक्चुअली रजिस्टर वेरिएबल का ये मतलब होता है कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, और माइक्रो प्रोसेसर का जो जनरल पर्पस रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर होता है, अगर वो फ्री होता है तो वो आपको
आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब असाइन कर देता है। तो वो रजिस्टर काफी फास्ट एलिमेंट होता है, सबसे फास्ट मेमोरी एलिमेंट होता है। तो कभी कभी कुछ प्रोग्राम जो काफी सेंसिटिव होते हैं उसके लिए जरूरत पड़ती है रजिस्टर वेरिएबल्स की। ओके, सेंसिटिव इन द सेंस, मान लो कोई एक प्रोग्राम आपने लिखा जो कि यूज हो रहा है किसी एटॉमिक पावर यूनिट में, कोई थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया तो वहां पे अलार्म बजाने के लिए, तो दैट शुड बी इन द पार्ट ऑफ द फास्टेस्ट पार्ट ऑफ योर हार्डवेयर। दैट्स व्हाई वी यूज रजिस्टर वेरिएबल डायरेक्टली। सो बट रजिस्टर हमेशा खाली नहीं होता है, क्योंकि प्रोसेसर्स के पास लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं जिसको यूजर को असाइन किया जा सकता है। दैट दोज आर कॉल्ड जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेसर हुआ करता था 8085, उसके पास 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते थे। अभी जो इंटेल के प्रोसेसर्स आ रहे हैं इनके पास ज्यादा सेट ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। सो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डेटा प्रोसेस्ड इन रजिस्टर्स explicitly stores commonly used data in registers, minimize load और store overhead। तो खैर ये चीजें अभी समझ पाओ तो समझो कि जैसा कि मैंने कहा कि आपका प्रोसेसर के ठीक बगल में रजिस्टर रहता है, तो इसको सबसे कम समय में वो उसको एक्सेस कर पाता है। तो ओवरहेड कम हुआ ना, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, मेमोरी के पास नहीं जाना पड़ा। Can explicitly declare certain variables as register using register keyword, must be a simple type, only local variables and function arguments eligible। मतलब फंक्शन के डेटा टाइप के पीछे आप रजिस्टर नहीं लगा सकते हो, सिर्फ लोकल वेरिएबल्स किसी फंक्शन का और जो फंक्शन का आर्गुमेंट होता है उसके अंदर ही आप यूज कर पाओगे रजिस्टर कीवर्ड को। एक्सेस और अनअलाउड रजिस्टर डिक्लेरेशन इग्नोर्ड कंपाइल्ड एज रेगुलर वेरिएबल्स। मतलब अगर प्रोग्राम में मैंने 10 रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए तो 10 तो अगर नहीं होंगे प्रोसेसर के पास, तो बाकी वेरिएबल्स आपके सिंपल वेरिएबल्स की तरह, मतलब इंटीजर के आगे रजिस्टर लगा तो वो इंटीजर वेरिएबल की तरह कंपाइलर आपका वो असाइन कर देगा उसको। ठीक है, रजिस्टर्स डू नॉट रिसाइड इन एड्रेस्ड मेमोरी, पॉइंटर ऑफ ए रजिस्टर वेरिएबल इलीगल। जैसा कि मैंने कहा रजिस्टर मेमोरी का पार्ट नहीं होता है, वो एक हार्डवेयर होता है जो कि प्रोसेसर के बगल में बैठा हुआ रहता है। तो अगर आप उसका एड्रेस प्रिंट करना चाहोगे देन यू विल गेट एन एरर। ओके, नाउ हैव एन एग्जांपल हियर। वेरिएबल का स्कोप एग्जांपल्स रिविजिट विद रजिस्टर वेरिएबल्स। द मेन फंक्शन के अंदर हमने रजिस्टर इंट argc लिया है, मतलब argc नाम का एक वेरिएबल है जिसका रिटर्न टाइप जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और वो उसका स्टोरेज टाइप क्या है, रजिस्टर। और जब यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं ना तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, ऑटो। ठीक है, जब आप कुछ नहीं लिखते हो इसका मतलब ऑटो आप लिख रहे हो। तो स्टोरेज क्लास ऑटो होता है, स्टैटिक होता है, रजिस्टर होता है और एक एक्सटर्न भी होता है। ठीक है, एक्सटर्न का मतलब होता है किसी दूसरे फाइल में मैंने लिखा है और उसको मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे एक्सटर्न लिखना पड़ता है उस वेरिएबल के आगे। फिर रजिस्टर यहाँ पे इंटीजर ए के लिए भी यूज किया, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, जो भी हो फिर आप यूज कर सकते हो। तो लोकल में यूज कर रहे हैं और आर्गुमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल को हम रजिस्टर नहीं लिख सकते। तो स्कोप क्या होगा रजिस्टर का, लोकल टू द फंक्शन और एज एन आर्गुमेंट टू द फंक्शन, दैट्स ऑल। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में पूछ सकता हूँ, डिफरेंट स्टोरेज टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मैं पूछता ही हूँ। ये मैंने आपको चलो ये क्वेश्चन आउट कर दिया इस बार, ध्यान रख, बट आसानी से नहीं पूछूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहां पे आपको वैल्यूज निकाल के मुझे देने पड़ेंगे कि क्या होगा। तो आपको रिविजिट करना पड़ेगा स्टैटिक का कॉन्सेप्ट, रजिस्टर का कॉन्सेप्ट, ऑटो का कॉन्सेप्ट और एक्सटर्न का कॉन्सेप्ट। सो दिस इज ए लीड क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। सो फ्रॉम माय साइड I will end today's class. If you have any questions, please go ahead and ask.